Hello students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in Edo Trival's classes. Students, today we are going to discuss a wonderful poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Yes, my dear students, it is your third poem in your 11th class Hornbill book, right? Third poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. So we'll discuss in this poem all the literary devices. First we'll discuss about the poet, Walt Whitman. Then we'll discuss all the literary devices that we call poetic devices. That we'll discuss, right? And then we'll go line to line explanation. So stay tuned with the channel and we are going to start the poem. Okay? So Walt Whitman. Walt Whitman is one of the best American poet, right? He is known as one of the best American poet, right? And let me tell you, he was born on 31st May 1819. He was born on 31st May 1819, right? And he got died on 26th March 1892, right? So one more thing students, I would tell you that Walt Whitman is known as the father of free verse. Father of free verse. VERSE. See, you must be thinking that what is the meaning of free verse? Free verse का meaning क्या होता है वो भी हम लोग discuss करेंगे. Actually free verse means that that poem, that poetry which is free in verse, जिसमें कोई भी rhyme scheme, कोई meter like that कुछ भी नहीं होता. And you will see that this poem, The Voice of the Rain, is also written in a free verse. इसमें कोई भी rhyme scheme नहीं मिलेगी आपको, ये भी एक free verse में है. So ये बात आपको पता होनी चाहिए that he is known as a father of free verse. ठीक है? Okay. Then we'll discuss about the literary devices, poetic devices. सबसे main जो poetic device है वो इसमें use हुई है. Which one is that? That is personification, right? personification. Personification. What is the meaning of personification? Students, personification means, you must have heard in Hindi, मानवीकरण अलंकार, आप लोगों ने पढ़ा होगा, right? So personification means here that literary device which tells, means the qualities of a human being are given to the non-living beings. Now here says that, who art thou? Said I to soft falling shower, and says that I am the poem of the earth. So यहाँ पे रेन है, जब वो बोल रही है कि I am the poem of the earth. जब रेन बोल रही है, जनरली बारिश नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे बोल रही है, दिखाया गया है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो एक लिटरेरी डिवाइस इसकी क्या है? पर्सोनिफिकेशन. ओके. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज मेटाफर. यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफर. मेटाफर, राइट? सो मेटाफर का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर समथिंग, जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, राइट? तो डायरेक्ट जब कहते हैं, ही द रेन सेज दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये पर्सोनिफिकेशन तो है. सेकंड सेज दैट सेड द वॉइस ऑफ द रेन, एंड इसी में मेटाफर भी है, राइट? नेक्स्ट वन इज सिमली. एक जो डिवाइस यूज हुई इसमें, सिमली. सिमली क्या होती है? SIMILE. सिमली मीन्स स्टूडेंट्स व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स यूजिंग एज एंड लाइक. तो जहां पे एज और लाइक के साथ इसको कंपेयर किया गया हो, दैट वी कॉल सिमली. ठीक है? तो इसमें सिमली यूज हुई है. एक लाइन टू लाइन में आपको बताऊंगा कहां पे कौन सी डिवाइस यूज हुई है, दैट विल डिस्कस व्हेन विल गो विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. एक और जो मेन डिवाइस यूज हुई है, दैट इज एंटीथेसिस. ANTHITHIES. एंटीथेसिस. ठीक है? एंटीथेसिस, वेट मिनट, ANTITHISES, right? Antithesis. So antithesis means होता है when two opposite words are given, opposite ideas are given. तो यहाँ पे क्या है? Altogether changed yet the same. तो उसमें एक antithesis डिवाइस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए चलते हैं पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्रेशन की तरफ. बिफोर स्टार्टिंग दैट यू मस्ट नो ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस. ठीक है? तो चलते हैं प्लान की एक्सप्लेनेशन की तरफ. What does the poet say here? That we'll discuss. Okay. And who art thou? पोइट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, हु आर दाउ मीन्स तुम कौन हो, हु आर यू एक्चुअली. Walt Whitman asked a question to the soft falling shower, to the rain.
एंड सेड आई टू द शॉर्ट फॉलोइंग शोर, सेड आई मीन्स किसके लिए? पोइट के लिए। कहते हैं पोइट कि मैंने कहा दैट हु आर यू, तुम कौन हो? मैंने किसको कहा? शॉर्ट फॉलोइंग शोर मीन्स बारिश को कहा। Which strange to tell. Poet says that it is really very strange to tell that gave me an answer and here translated. Actually rain gave the answer. Rain ने आंसर दिया और जो पोइट ने यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है that is translated. वो ट्रांसलेट करके लिखा उसने, right? What was that? I am the poem of the earth. I am the poem of earth. रेन सेज, रेन ने कहा यहाँ पे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम, मीन्स मेरा बर्थ प्लेस क्या है, मेरा ओरिजिन क्या है, दैट इज अर्थ। ओके, सो फर्दर इट सेज दैट सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश ने कहा, एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल आई राइज, पोइट सेज हियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटर्नल? एटर्नल मीन्स एवरलास्टिंग, ऑलवेज। एटर्नल आई राइज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्चुअली ये पोएम है क्या? इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ रेन, राइट? इट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ रेन। बारिश जो है वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट होती है? वो पहले जो बॉटमलेस सी है वहाँ से वो एज अ इवेपोरेशन के रूप में, इवेपोरेशन में ऊपर उठती है, जो ऊपर जाती है तो बादलों में जाकर उसका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद वो दोबारा फिर रेन के रूप में नीचे आती है। वो इवेपोरेशन के रूप में नीचे ऊपर जाती है और रेन के रूप में नीचे आती है। सो दिस इज ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ अ रेन इज गिवन इन दिस पोएम। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो eternal means everlasting, means continuous. I rise impalpable. Impalpable means without seen. Impalpable means without seen. Nobody can touch me. Out of the land and the bottomless sea. कहाँ से उठती है? As I told, evaporation जो है out of the land and the bottomless sea. Bottomless sea means we cannot measure the sea. वहाँ से मैं अथाह सागर से उठती रहती हूँ। ठीक है। Upward to heaven. Heaven means sky. आकाश की तरफ। Upward to heaven. Whence vaguely formed, altogether changed yet the same. Poet says here that vaguely changed yet the same. So rain says here that upward to heaven, आकाश की तरफ, whence, whence means here that from where, whence means from where, vaguely formed, altogether changed yet the same. Vaguely means dimly, not very clearly, formed, altogether changed, altogether changed, हालांकि मैं यहाँ पे related वाइज आपके एंटीथेसिस कहते हैं, altogether changed, हालांकि वो चेंज है, yet the same, फिर भी वो सेम है, क्योंकि इवेपोरेशन में जो बारिश ऊपर गई वो बारिश का रूप तो है, मीन्स चेंज भी है लेकिन फिर भी सेम भी है। सो इट सेज दैट altogether changed yet the same. ओके, I descend to lave the draughts. I descend, ascending ऊपर जाना, descend means come down. अब मैं ऊपर, जब कंडेंसेशन हो जाता है, बारिश का रूप ले लेते हैं वो जो इवेपोरेशन ऊपर जाने के बाद, कहते हैं आई डिसेंड, आई कम डाउन। बारिश बोल रहे हैं यहाँ पे तो रिलेटेड वाइज कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स। टू लेव मीन्स टू वॉश, टू लेव मीन्स टू वॉश द ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मीन्स सूखा, राइट? ड्राइनेस, ड्रॉट मीन्स ड्राइनेस। एटमीज, तो मैं आई डिसेंड, में नीचे आती हूँ, जो ड्रॉट्स हैं उसको, सूखे को वॉश करने के लिए, यानी कि उसको मिटाने के लिए। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड एटमीज, जो एटमीज हैं यानी कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, एटमीज मीन्स द टाइनी पार्टिकल्स, जो नीचे टाइनी पार्टिकल्स हैं धूल के, एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब मीन्स धरती पर जो डस्ट लेयर्स हैं उन सभी को मिटाने के लिए, साफ करने के लिए मैं आती हूँ। ठीक है, and all that in them without me were seeds only. Poet says that actually बारिश के बिना क्या है? Without me, all them, जो सारे थे वो मेरे बिना seeds थे, सिर्फ बीज मात्र थे, यानी कि जो भी चीज़ें थी जो पड़ी हुई थी धरती के अंदर बिना बारिश के, वो सिर्फ बीज के रूप में पड़ी हुई हैं। Latent unborn, latent means hidden, latent means hidden, unborn without any birth, अभी तक उन्होंने जन्म नहीं लिया था, वो नीचे पड़े हुए थे। ठीक है, and forever by day and night, and forever means always, by day and night, दिन रात, I give back life to my own origin, मैं अपने खुद के origin को, that is my birth place, मैं उसको एक लाइफ वापस देती हूँ। It means that gives a life to its origin. और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैसेज भी देती है ये रेन, राइट? एक्चुअली what is the reason?
रीज़न यही होता है एंड लॉजिक भी इसके पीछे यही है दैट जहाँ से हमने जन्म लिया है हमें उसकी हेल्प करनी, उसकी सेवा करनी ज़रूरी चाहिए। तो एक मैसेज यही जाता है दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इट्स माई पर्सनल थिंकिंग, इट कैन बी द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, बट आई फील दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। उन्होंने हमें जन्म दिया है, वही रेन यहाँ पे कर रही है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। जिसने मुझे जन्म दिया है उसको दोबारा जिंदगी दे रही हूँ। व्हाट डज इट मीन? एक मैसेज है लाइफ के लिए दैट हमें भी, जिसने हमें जन्म दिया है, हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, राइट। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। एंड व्हाट डू आई डू? एंड मेक प्योर, क्योंकि बारिश जब नहीं आती है तो वहाँ पे एटमीज होते हैं, सूखा होता है, डस्ट लेयर होती हैं, धूल कण होते हैं। तो जब बारिश आती है तो क्या करती है? दैट प्योर इट एंड ब्यूटिफाइड। और ब्यूटीफाई मीन्स ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश के बिना वो सारा क्या था? बंजर पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। जैसे बारिश आती है वो उसको सबसे सुंदर बना देती है, राइट। नेक्स्ट इज दैट for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering. Poet says, अब ये दो लाइनें कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रैकेट में क्यों है, रैग्ड और अनरैग्ड डेली विद लव रिटर्न्स। सो दीज लाइन्स अबाउट द पोएम, ऊपर वो बारिश के लिए थी, रेन के लिए थी, और अभी ये दो लाइनें हैं पोएम के लिए, पोएट के सॉन्ग के लिए। दैट सेज दैट फॉर सॉन्ग, और कहते हैं सॉन्ग के लिए भी, मेरी पोएम के लिए भी, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। ये क्या होता है? ये भी अपने बर्थ प्लेस से स्टार्ट होता है, चलता है यहाँ पे। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और ये पूरा एक चक्कर काट कर आता है, फुलफिलमेंट करता है, पूरा अचीवमेंट्स लेता है, वॉन्डरिंग करता है और वापस घूम फिर कर वापस आता है। रैग्ड और अनरैग्ड डली विद लव एंड रिटर्न्स। कहते हैं रैग्ड एंड अनरैग्ड, चाहे वो उसके किसी ने देखा हो, रैग्ड मीन्स इफ वेदर एनीबडी पेड अटेंशन, अनरैग्ड और किसी ने अटेंशन नहीं पे किया हो, मीन्स दैट डजंट मैटर मेरे लिए। पोएट कहता है किसी ने उसकी तरफ अटेंशन पे किया या नहीं किया, लेकिन वो फाइनली फिर भी जब आता है तो डली विद लव, वो वापस प्यार के साथ, प्रॉपरली विद लव रिटर्न्स, वो वापस आता है। सो पोएट सेज दैट इन द सेम मैनर व्हाट हैपेंस एंड दैट इज द अचीवमेंट। कहते हैं कि जब मैंने कोई सॉन्ग, कोई पोएम वगैरह लिखी, कोई गीत वगैरह लिखा और लोगों ने उसको सुना, वो घूम फिर के वापस पूरे वंडरिंग करके वापस जब मेरे पास पहुंचा, तो लोगों ने मुझे बताया कि इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो दैट इज रियली प्रेज वर्दी थिंग फॉर मी। आई रियली लव इट, लाइक इट, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम Voice of the Rain. In the next chapter, means in the next video, we'll discuss about the question answers of this poem. Okay, till then, these are the word means actually जो भी हम discuss कर चुके हैं। Impalpable, something that cannot be touched. Lave, wash, bathe. Atomies, tiny particles. Latent, hidden, latent sheets. So we have discussed actually the complete poem with word meanings, all the explanation. I hope you must have understood the poem. If you have understood and if you are new on our channel, you can subscribe it, you can like it and you can share with your friends. Okay, till then, bye bye, have a nice day.